to all of you. How are you? I think you all are fine, and I am also fine. You know that this is your own channel, that is the Dikshit Physics Point. For today, I am going to present a special class for the students of 11th and the student of 12th class. As we have been discussed in our last 30 plus classes, your first chapter, that is the chapter of 12th standard, the electric field and the electric charge. So let me have a small chat together what we have from the last classes. Okay. आज हम इस पर्टिकुलर क्लास में ये बात करेंगे कि हमने जो पिछली अपनी क्लासेस अटेंड की हैं, जितनी भी क्लासेस अटेंड की हैं हमने, जिसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट कर लिया है, उसके बारे में हमने जो समझा है और जो उसमें कॉन्सेप्ट थे, क्या वो कॉन्सेप्ट हमने प्रॉपर ग्रिप किए हैं या नहीं किए हैं. तो आई कैन से द टुडे क्लासेस very useful for the academic exams of academic exam and as well as for the competitive exams. And this class is this class is very important for both the students who are going to give the academic board exam 2020 and 21 and also preparing for the competitive exams. So let I check what you have from my classes. Be with me till the class end. And I told you before, the physics is the subject of sequence, so you have to maintain the sequence. Now I am going to start my today class, and this class is very important. Okay, so focus it and be with me till the class end. तो आज मैंने आप लोगों के लिए कुछ नया प्लान किया है. वो प्लान ये है कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लासेस में रीड किए हैं, पढ़े हैं, हमें पता चले क्या उनके बारे में हमने कुछ ठीक से जाना है या ठीक से नहीं जाना है. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज, द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज दैट इज चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, द चार्ज इज कंजर्व एंड कंपेरिजन ऑफ चार्ज विद द मास. तो और भी बहुत सारी चीज़ें हमने रीड की हैं. अ चार्ज कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वी आल्सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, electric field due to a electric dipole. Electric dipole is a system of two equal and opposite charges, you know very well, and electric field due to an electric dipole on its equatorial line, on its axial line, at a point anywhere in the surrounding of the dipole, and the Gauss law, Gauss theorem, electric flux, applications of Gauss theorem. We can establish the Coulomb's law by using the Gauss theorem. We can establish the formula of electric field due to the linear charge distribution, and also we can establish the formula of electric field due to a charged metallic sheet. In between two charged metallic sheet, electric field due to a spherical cell, electric field due to a non-conducting solid sphere. So I selected some very useful questions for you. So take a notebook and a pen and be with me till the class end. तो आपको एक कॉपी लेनी है, एक पेन लेनी है और अपने आप को चेक करना है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है क्या हमने उसको ठीक से पढ़ा है या उसके जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो हमने ठीक से ग्रैस्प किए हैं या नहीं किए हैं. तो कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं इस पर्टिकुलर क्लास के लिए, तो जिनके थ्रू आप चेक कर पाएंगे अपने आप को और मुझे भी पता चलेगा, ठीक है, कि व्हाट आर यू डूइंग इन माय क्लास. सो our first question for the today class is question 1. How many state coulombs in one coulomb of charge? Your options are 3 into 10 to the power minus 9 V,
3 into 10 to the power minus 19, C 3 into 10 to the power 9, and D 9 into 10 to the power 9. So I repeat my question, how many state coulombs in 1 coulomb of charge? You already know that state coulomb is the unit of charge in the CGS system. So अपने आंसर को आप नोट करते जाइए, देखिएगा लास्ट में आपके कितने ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये मैं अभी आपको बताता जाता हूँ. तो एक सोच लीजिए, क्लिक कर लीजिए. द ऑप्शन फॉर 3 into 10 to the power minus 9, 3 into 10 to the power minus 19, 3 into 10 to the power 9, and 9 into 10 to the power 9. So what is the correct option? मैंने बताया होगा क्लास में. तो your correct option is this, C. In 1 coulomb, there are 3 into 10 to the power 9 state coulombs. A state coulomb is the unit of charge in CGS system. Clear? Now, we are moving towards our next question. The second question for today. The next question I selected. The second question is this. Second question is this. We have one thing and this. Object A, object B. We have two objects A and B. As shown in figure. Okay. When we rub A with B, electron transfer from A to B if options are phi A is greater than phi B, B phi A is equals to phi B, and C phi A is less than phi B, and D depending upon the mass of A and D. These are our options. And in the question, this is also given that where phi A is the work function of the thing A and phi B is the work function of thing B. Means question को understand कर लीजिए. When we have two objects A and B as shown in the figure, when we rub A with B, electron gets transferred A to B. Electron A से B में transfer हो रहे हैं. Question में ये पूछा जा रहा है, what is the relation between the work function of these two objects? Work function are given by, for the A object it is phi A, for the B object it is phi B. So we have the four options. Phi A should be greater than phi B. Phi A is equals to phi B. Phi A is less than phi B. And depending upon the mass of A and B या A. तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आप खुद ही चूज कर लीजिए, बताया होगा मैंने जब कॉन्सेप्ट बताए होंगे. ठीक है, A और B को रब कर रहे हैं, ये आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन A से B की तरफ जा रहे हैं. तो क्या इनमें से कंडीशन होगी? ओके, आंसर आपने सिलेक्ट कर लिया होगा जो भी है. तो अपने आप को चेक करते जाइए, अपना आंसर लिखते जाइए और करेक्ट आंसर लिखते जाइए जो मैं बता रहा हूँ. नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज अगेन सी. द phi A is less than phi B. मैंने आपको बताया था when we rub two objects together, electron gets transferred from one to another. The object which loses the electron have the low work function and which gain the electron has the greater work function. तो क्वेश्चन में क्या है, ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब ए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और बी गेन कर रहा है. तो इसका मतलब डेफिनेटली ए का वर्क फंक्शन कम होगा. दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन. तो इनको आप चाहें तो नोट डाउन करते जाएं, बाद में स्क्रीन को पॉज करके या वीडियो को प्लेबैक करके देख सकते हैं. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं.
Next question. Next question is question 3. A body is negatively charged. Then its mass. एक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इट्स मास के बारे में पूछा गया है. ऑप्शन आर remain same, V increases, C decreases, and D increases then decreases. There are the 4 options for the question. A body is negatively charged, then its mass. अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया गया है तो उसके मास के बारे में आपको एक assumption लेना है which should be correct. मास सेम रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा. These are the 4 option. इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है, तो अपना आंसर सिलेक्ट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ what will be the correct answer. Okay? So the right answer is B. The mass of body increases. I think concept बताते हुए मैंने आपको बताया होगा और आपको ऑलरेडी भी पता होगा. Electron is a matter particle which had the mass 9.1 into 10 power minus 31 kg. और when the object is negatively charged, it means it gains the electrons. इलेक्ट्रॉन आएंगे और जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन तो मैटर पार्टिकल है, अपने साथ मास भी लाएंगे, तो बॉडी का मास क्या हो जाना चाहिए? इंक्रीज हो जाना चाहिए. तो द आंसर इज इंक्रीजेस. अपना आंसर और मेरा आंसर जो करेक्ट आंसर है मैच कर, लास्ट में मैच कर लीजिएगा कितने परसेंट आपने सही अटेम्प्ट किए हैं. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 4. आवर 4 क्वेश्चन इज a charged particle has the charge 20 microcoulomb. Sorry, coulomb. Has a charge 20 coulomb and mass m at the position of rest. Okay, what will be its charge and mass if it moves with the speed of light? The option A is 20 coulomb and m. The option B is 40 coulomb and m. The option C is 20 coulomb and 10 coulomb. M by 2 and option D is infinity. These are the 4 options. Questions एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए. A charged particle have a charge 20 coulomb and mass m at the position of rest. What will be its charge and mass if it moves with the speed of light? तो आपको एक करेक्ट ऑप्शन लिख रहा है. क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज 20 कोलम है. जब वो रेस्ट पोजीशन में था, अगर यही पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो इसके चार्ज और मास क्या होंगे? तो ऑप्शन फॉर 20 कोलम एंड m मीन्स चार्ज भी सेम, मास भी सेम. 40 कोलम एंड m मीन्स चार्ज डबल हो गया, मास सेम रह गया. 10 कोलम चार्ज हाफ हो गया एंड मास भी हाफ हो गया. एंड लास्ट वन इज
20 कूलम एंड मास इंफिनिटी हो गया. विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो यू सिलेक्ट योर आंसर. ओके, let me tell what is the right answer. The right answer is this, D, 20 coulomb and infinity. तो आपको पता है, आपने प्रॉपर्टी का नोट डाउन किया है, द चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द मोशन. चार्ज अगर रेस्ट में किसी पार्टिकल पे जितना चार्ज है, मोशन में भी उतना ही चार्ज रहेगा, लेकिन मास चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला m इक्वल्स टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. और क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि द पार्टिकल मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट. अगर हम इसकी वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, मीन c के इक्वल कर लेते हैं, तो c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी. तो चार्ज सेम रहेगा और मास कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट. तो द राइट आंसर इज दिस, 20 कूलम एंड द इनफाइनाइट. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. ओके, so now you can note down this question also while watching the screen. Our next question, question 5. Okay, our 5 question is, Coulomb's law was discovered by options are these are the 4 options. According to question, Coulomb's law was discovered before the Coulomb line. Coulomb's law को Coulomb से पहले किसने डिस्कवर किया था? Faraday, Newton, Oersted and Cavendish. These are the 4 options. We the 4 name of scientist. कौन से? Faraday, Newton, Oersted and Cavendish. So do you know who discovered the Coulomb's law before the Coulomb? Coulomb से पहले Coulomb's law को किसने डिस्कवर कर लिया था? Okay. Let me tell the answer. The right answer is Cavendish. बताया होगा मैंने अलग अलग क्लासेस में कॉन्सेप्ट वाइज, बट अगर कॉन्सेप्ट आपने प्रॉपरली गेन किए होंगे तो ये हो जाना चाहिए. Cavendish is the correct answer. मैंने आपको बताया था the Coulomb's law was discovered before the Coulomb's, but this fact is known after the 65 year of his death. उनके मरने के 65 ईयर के बाद पता चला कि कोलम्ब्स लॉ तो पहले ही कैवेंडिश डिस्कवर कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने तो ये लॉ दिया था, द सिमिलर चार्ज रिपेल टुगेदर एंड डिसिमिलर चार्ज अटैक टुगेदर. सो दिस इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 6. Question 6 is in this page. A particle which has the same mass and charge
If this is the question, a particle which has the same mass and the charge, जिसका मास भी सेम है, चार्ज भी सेम है, बट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पार्टिकल जिसका मास उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, चार्ज भी उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन नेचर में अपोजिट है, मतलब इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव तो उस पर पॉजिटिव। ऑप्शंस आर, कौन सा पार्टिकल आपको आइडेंटिफाई करना है? फोटॉन, बी प्रोटॉन, सी क्वार्क एंड डी विच वन इज द करेक्ट? अपनी नोटबुक पे सेलेक्ट करिए अपना आंसर, उसके बाद मैं बताता हूँ। अ पार्टिकल विच हैव द सेम मास एंड द चार्ज, जिसका मास और चार्ज सेम हो बट इलेक्ट्रॉन के चार्ज के अपोजिट हो एज द इलेक्ट्रॉन, उस पार्टिकल का नाम क्या है? तो फोटॉन आपको पता है इसका कोई मास ही नहीं होता, रेस्ट मास 0 होता है और चार्ज भी नहीं होता। प्रोटॉन पे चार्ज उतना ही होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पे है, नेचर में भी अपोजिट होता है लेकिन इसका मास अलग है इलेक्ट्रॉन के, तो ये नहीं हो सकता। क्वार्क ये भी नहीं है क्योंकि इस पे चार्ज तो उतना ही नहीं होता जितने इलेक्ट्रॉन पे होता है। और पॉजिट्रॉन, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। पॉजिट्रॉन इज अ पार्टिकल, दिस इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस पे चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का हो बट पॉजिटिव होता है और मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन है okay, the force between two charges separated by a distance in air is F. What will be the force if the system of charges is placed in medium of dielectric constant K? Options are F, B, 2F, C, KF and D, F upon K. This is the question. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो चार्ज एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे गए और उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो F आपको गिवन है, ठीक है, बट द चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर। बाद में कह रहे हैं कि उसी पूरे सिस्टम को मतलब चार्जेस जो है वही रहेंगे, उनके बीच में डिस्टेंस जो वही रहेगी, एक किसी दूसरी मीडियम में उठा के प्लेस कर दिया गया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो फोर्स कितना हो जाएगा? F उतना ही रहेगा, डबल हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ मीन्स डायलेक्ट्रिक टाइम्स ऑफ द फोर्स हो जाएगा, पर अपॉन K टाइम्स हो जाएगा। तो आई थिंक यू नो द राइट आंसर। द राइट आंसर इज D, F upon K. The force between the charges decreases when they are placed in the dielectric medium. You know that. So this is the right answer. So again you can note down these questions by pausing the screen. Now we are moving toward the next question. Next question, question 8.
मेड बाई क्वार्क्स इन नंबर्स। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन में कितने क्वार्क्स होते हैं? थ्योरी के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शंस वी हैव। नंबर ऑफ क्वार्क्स इन वन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज 4, 3, 2 एंड अननोन। या तो हमें पता नहीं है, या 2 होते हैं, या 3 होते हैं, या 4। सिलेक्ट योर आंसर बिफोर मी। पहले आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। आई थिंक ये सभी कुछ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया होगा, बट यहाँ पे मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में यूज कर रहा हूँ उनको। तो द राइट आंसर इज 3। A proton and neutron have 3 quarks। 3 quarks से मिलकर एक प्रोटॉन बनता है, उसी से एक न्यूट्रॉन बनता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक क्वार्क में, एक प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क होगा, और एक न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क होगा। दिस इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये तो सारे हमने ऑब्जेक्टिव टाइप पे बात कर ली है। अब हम 1-2 क्वेश्चन ऐसे बात कर लेते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करें, ठीक है। नाउ द 9th क्वेश्चन इज, then a body have charge 0.8 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट ये क्वेश्चन है। क्या किसी बॉडी पे 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज हो सकता है या नहीं? तो चेक करने का क्या तरीका है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अगर ये चार्ज क्वांटाइजेशन लॉ फॉलो कर रहा है तो होगा, अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो नहीं हो सकता। लेट्स वी चेक। तो वी हैव द फॉर्मूला Q इक्वल्स टू NE and N इक्वल्स टू Q अपॉन E। Q is given 0.8 into 10 to the power minus 19. The charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19. This 19 is cancelled out here, and this is 0.8 divided by 1.6 is cancelled, 0.5 electrons। तो कैलकुलेट करने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल रहे हैं? 0.5। 0.5 मीन्स आधा इलेक्ट्रॉन। क्या ये पॉसिबल है? तो योर आंसर शुड बी नो। A body cannot have the charge 0.8 into 10 to the power minus 19 coulomb because this charge does not follow the law of quantization. The number of electrons are in friction and an electron cannot be divided. Okay? Now the next question is question 10. What will be electrostatic force between two charges 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb if they are at a distance 8 into 10 to the power minus 18 मीटर। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है क्वेश्चन। सो दिस वन, ऑप्शन ए इज 3.6 into 10 to the power 7, and option B is 3.6 is 10 to the power minus 9, C is 3.6 is 10 to the power 18, and D 0, that is no force. Okay, so these are the option. What will be the electrostatic force between two charges 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb
if they are at a distance 8 into 10 to the power minus 15 meter. The values are 3.6 into 10 to the power 7, 3.6 into 10 to the power minus 9, 3.6 into 10 to the power minus 15 and last one is 0 or no force. तो जब हम इसको कैलकुलेट करें, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप लोग कैलकुलेट करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट को सही से क्लियर ना होना आपका टाइम वेस्ट कराता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट ठीक से पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, दैट इज द कूलम्ब्स लगा, तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे, अदरवाइज आप कैलकुलेट करके चेक करेंगे और इनमें से कोई एक वो आंसर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहले आप अपना आंसर लिख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ व्हाट द आंसर इज ऑप्शन डी, 0 एंड नो फोर्स। अब आप सोचेंगे कि डिस्टेंस भी दी है, चार्ज भी गिवन है, अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0 कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 आने के तो कोई चांस लग नहीं रहे। तो सिंपल है, मैंने आपको बताया था द लॉ, लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। It will act from a certain less distance, that is less than 10 to the power minus 15 meter up to few kilometer range। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 10 to the power minus 15 मीटर से कम है तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफेक्ट नहीं करेंगे। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट हमें देखना है। द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस गिवन 8 into 10 to the power minus 18 मीटर, और इस डिस्टेंस का ऑर्डर न्यूक्लियस की जो रेडियाई होती है, डायमीटर होता है, उससे कम है, मीन्स 10 to the power minus 15 से कम है, तो इट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा नहीं तो आंसर तो 0 या नो फोर्स ही होना चाहिए ना। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। तो इसलिए होगा, तो कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करना कितना जरूरी है आप समझ लीजिए इस डिस्टेंस पे। और दूसरी भाषा में अगर मैं कहूँ तो चार्जेस गिवन 1.6 into 10 to the power minus 19, 1.6 into 10 to the power minus 19 किसके चार्ज हैं? प्रोटॉन के चार्ज हैं, इफ दे आर पॉजिटिव। और दोनों प्रोटॉन ये कहाँ हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क नहीं करते। वहाँ कौन सा वर्क करता है? न्यूक्लियर, जो ना ही इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है और ना ही वो ग्रेविटेशनल है, ना ही वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ। So you can again note down this question by the same process. Now the last question of today, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। Last question of today. Correct form of these are the four options. What is the correct form of Gauss law in CGS system? This is the question. Four options we have. A is phi E F E dot ds. अगर आप डायरेक्ट इसको एज्यूम कर सकते हैं, ये तो जनरल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, phi E equals to q upon epsilon naught,
phi e equals to q into epsilon naught, phi e equals to just q and phi e equals to 4 pi q। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है तो आप चूज कर लीजिए इसको, ठीक है। अभी रैंडमली सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके समझ में आ रहा हो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, नाउ द राइट आंसर इज दिस, डी, phi e is e dot ds equals to 4 pi q। ये होगा इन CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में ये होगा, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो तो यही फॉर्म है, दिस फॉर्म phi e equals to e dot ds, surface inclination of electric field over a given surface is equals to the net charge divided by epsilon naught। लेकिन जैसे ही CGS सिस्टम में आएंगे तो ये टर्म हो जाएगा। तो अगर आप चेक करना चाहते हो तो मैं इसको चेक भी करवा देता हूँ कैसे। phi e बेसिकली क्या होता है, इसको जब हम यहाँ पे जो कांस्टेंट लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, यही वैल्यू होगी ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ से हमें 1/ε0 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये होगी 4 पाई 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इस 1/ε0 की वैल्यू को हम CGS में चेंज करें, ये तो MKS में, तो देखिए क्या क्या होगा, 4 पाई 9 इंटू 10⁹, न्यूटन को CGS में लिखेंगे तो न्यूटन का CGS में क्या होता है, डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। 11th स्टैंडर्ड पे आपने किया होगा डायमेंशनल में, तो न्यूटन को कन्वर्ट किया तो 10⁵ आ गया। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर को भी कन्वर्ट कर दीजिए, मीटर की जगह अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, अपॉन कूलम स्क्वायर। कूलम का CGS यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड CGS यूनिट इज स्टेट कूलम। तो क्या है, 1 कूलम इज 3 इंटू 10⁹, ESU लिखते हैं इसको, ESU स्टेट कूलम। तो यहाँ पे कूलम स्क्वायर है 3 इंटू 10⁹ का स्क्वायर, और अब ये यूनिट क्या हो गया, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU और स्टेट कूलम स्क्वायर, ये यूनिट हो गया। ये CGS में आ गया। वैल्यू चेक कर लेते हैं कितनी होती है, क्या देखते हैं, 4 पाई 9 इंटू 10⁹, पावर्स अरेंज करिए, 10⁵ and 4 9, and here 9 into 10⁻18, 10⁻9, 10⁻9, 10⁻18 are cancelled, 9 and 9 are cancelled, the remaining value is 4 पाई। तो 1/ε0 की वैल्यू यहाँ पे क्या बची CGS सिस्टम में, 4 पाई, और यूनिट क्या आ गया इसका, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर स्टेट कूलम स्क्वायर, ये यूनिट हो गया। तो जैसे ही आप इस फॉर्म में जो MKS में है 1/ε0 की वैल्यू CGS में प्लेस करेंगे तो जो भी स्टेट कूलम में ही होगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 1/ε0 के प्लेस पे 4 पाई, तो आपका ये phi e जो आप लिखते थे Q अपॉन एप्सिलॉन 1/ε0, और 1/ε0 की वैल्यू CGS में इतनी है, इक्वल्स टू 4 पाई, दैट इज 4 पाई Q। और यह कंडीशन लिख देता हूँ, Q इज इन स्टेट कॉलम, Q को स्टेट कॉलम में मेजर किया गया होता। तो याद रखिएगा, दिस इज द गॉस लॉ इन CGS सिस्टम। तो ये आज के क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। तो दिस सेक्शन में बी एकेडमिक एज वेल एज द कम्पिटिटिव, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ है पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और प्लीज़ ओवर कनेक्टेड विद मी, जो भी इस चैनल के थ्रू मुझसे जुड़े हुए हैं, वो ये लेवल 1 था हमारे एग्ज़ाम का, धीरे धीरे हम लेवल चेंज करेंगे।
और वो मुझे सजेस्ट करें, और आप अपने डाउट्स हैं अगर तो वो भी कमेंट बॉक्स में दें, और मुझे बताएं हाउ आर यू फीलिंग बाय दिस स्पेशल सेक्शन ऑफ माय क्लास. So goodbye till the next class and enjoy.